दशमेश पंथ दे बानी ओ सदा जिउंदे ने कौम लई जो करदे कुर्बानी ओ सदा जिउंदे ने कौम लई जो करदे कुर्बानी सूर में हंस के पद कटवाउंदे ऊपर भी ले जाते सूर में हंस के पद कटवाउंदे गुरु धर्म बचाउण लई दीप सिंह तली ते सीस टकाउंदे गुरु धाम बचाउण लई दीप सिंह तली ते सीस टकाउंदे टुकड़े कर बच्चियां दे गला विच हार पवाउंदे कानी टुकड़े कर बच्चियां दे गला विच हार चमकन चो मुंदरी विच ठेवा ओ तारे अरिशां दे चमकन चो मुंदरी विच ठेवा उधम सिंह सूरे नूं नूर दी देंदे लोग सलामी उधम सिंह सूरे नूं नूर दी देंदे लोग सलामी ओ सदा जिउंदे ने कौम लई जो करदे कुर्बानी ओ सदा
ਇਹ ਦਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤੇ ਆਪ ਔਕੜਾਂ ਮੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਔਖਦ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਬਲ ਚੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕਥਾ ਵਾਚ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਭਾਜੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਾਰਪੁਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਲਹਿਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਦਖਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਠੋਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ। ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨਾ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਚੌਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਟਾਈਮ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕੇ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਜਣੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਆਪ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਤਲਗਾਹ ਵੱਲ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਢਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ
मैं गुरु नानक साहब के दरबार में जाके अरदास करा। पंडितां दे बड़ा वड्डा धक्का होया, मैं संखेप जे बचन करांगा। उन्हां सलाह कीती क्योंकि एक मीटिंग इन्हां दी होई डल झील दे किनारे, उत्थे जितने पंडित आए सन पूछया गया शेर अफगान ने तुसी मुसलमान होना कुर्बान कर दे प्रवानगी दिओगे मुसलमान होने दी? उन्हें ना कर दी। उन्हें आख्या बोरे इन्हां दे गलां च बन दिते जाण। गलां च बोरे बन के एक एक पत्थर उस बोरे च पा दिता गया। कहणगे इस डल झील च धक्का दे के सारे नूं डोब दिता जाए। मार दिते गए सारे पंडित। बट मजार ते एक मीटिंग फिर हुई, उथे फिर बहुत ज्यादा पंडित मारे गए। फिर हाहाकार मच गई दुनिया विच। इन्हां सोचिया जुल्म दा मुकाबला कौन कर सकता है? विचार करके सोचते ने, ख्याल करो जिन्हां ने कदी औरंगजेब दे बादशाह दे वड वडेरियां नाल मुकाबला कीता होवे, इहो जिहा कोई इंसान है दुनिया विच? उन्हां दी विचार इत्थे पहुंच गई। हां, औरंगजेब दे वड वडेरियां नाल मुकाबला कीता गुरु नानक साहब दे घर ने, गुरु नानक साहब महाराज ने। जहांगीर बादशाह दे नाल टक्कर हुई पंजवें पातशाह महाराज दी। अज उन्हां दी गद्दी दे वारिस कौन ने? सलाह हुई पंडित कृपा राम कहंदा अज गुरु तेग बहादुर महाराज नावी जोत बैठे ने, चलो उन्हां दे दरवाजे ते जल के कुंडी खड़का के अरदास करने आ, पातशाह साडा धर्म डुब चला, बचा लो डुबदे होए धर्म नूं। ये पंडित फिर आए सन 16 बंदे इकट्ठे हो के एक मता लेके आए गुरु तेग बहादुर महाराज दे सजे हुए दरबार विच। इतिहास कहता है गुरु नानक पातशाह महाराज के दरबार में जो हाजिर होए, इन्हां मूंह च कहा लिया सी, गला च पल्ले पाए सन। इन्हां क्या महाराज सानू शेर मारिया, असीं गाई बन के तेरे दरबार में आए हैं, इन्हां गाइयां दी रखिया कर लै मेरे दाता जी। सज्जनों याद रखियो जिहड़े गुरु तेग बहादुर महाराज के दरबार में पंडित आए, रोंदे होए करवाउंदे होए आए, ते गुरु तेग बहादुर महाराज उन्होंने पुछदे ने, आओ कित्थों आए हो, की दर्द है तुहानू? ते उन्हां हाथ जोड़ के जिवें बेनती कीती, महाराज साडा धर्म डुब चलिया है, इत्थों आरंभता करांगा। एक अर्ज लैके दुखियारा इस दरबार विच हुंदा है, जिवें अज भी सानू कोई दुख लग जाए असीं अर्जा करने, असीं बेनतियां करने आ, उदों भी एक दुखियारा इस दरबार विच आया है। दुखियारे बन के ताही मार के गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों च रो के पंडित जिवें बेनतियां करते हैं। आओ इतिहास की लड़ी इत्थों आरंभ कर रहे हैं। लखविंदर सिंह निमाणी दा ढाडी जत्था है, इउं कहंदा
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा रंग नाल आप जी हाजरी भर के सतगुरु दी खुशियां प्राप्त कर रहे हो। यत्न करांगा दिल्ली की धरती तक तुहानू लेके जा, थोड़ा घेरे चला जा। मेरा सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कृपा करे। भाजी धर्म सिंह वालों ढाडी जथे नूं 100 रुपए इनाम ते सरंगी मास्टर नूं भी 100 रुपए इनाम स्पैशल दे के गए ने। ये मैनू पुछ रहे सन भी सरंगी मास्टर वधिया होना चाहिए है, जिहड़ा नाल बोलदा होवे ते अमरीक सिंह सरंगी भी वधिया वजाउंदा ते गाउण च भी दी कोई घाट नहीं। आवाज रब ने खुली बख्शिश की। रहमत दाते दे दोवें गुण किसे किसे च हुंदे ने। ते सरंगी मास्टर बोल नहीं जादा सकदा, सरंगी वजा देणगे, गाया नहीं जांदा। इस करके गुरमुखो दोनों गुण इहदे विच मेरे दाते ने भरे ने। सतगुरु चढ़दियां कलां बख्शे। हुण मैं जिहड़ी चीज तुहाडे सामने कहण लगा, आगरे च नावे पातशाह चोर जिवें वरताउंदे ने ये कविता कहांगा। धन्नवादियां बहुत मान आया सारियां संगतां वल्लों। वीर जी जोगा सिंह जी मेरे बच्चों वर्गे ने, शेशी ने मेरे सारे बच्चे, उन्हां वल्लों अरदासां होईयां ने। क्योंकि बच्चों दी अरदासां होंदियां, वड्डियां दा आशीर्वाद हुंदा है। इन्हां दी अरदासां ने कि दाता कृपा करियो इस जथे दे विच चढ़दियां नाल जथे दी भी अरदास ते नाल अपनियां भी अरदासां। इन्हां दी अरदास मैं करदा, दाता इन्हां नूं चढ़दियां कलां बख्शियो। सिर ते हत्थ रखना, रहमतां भरिया। आओ समा बिल्कुल तकरीबन 25 मिनट दा बाकी रह गया। 2-3 कवितावां कह के समाप्ति करांगा। गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों च अरदास हुई। गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह बाहरों आ गए। गुरु तेग बहादुर महाराज सोचां च डुबे हुए ने। सजणों गोबिंद राय ने गल च पल्ला पा के पुछया, बापू तेरे दरबार विच कदे कोई आके रोया नहीं? आ कौन लोग ने जिहड़े रोंदे? हजूर गुरु तेग बहादुर महाराज ने भी शब्द किया सी। आख्या, बच्चो तेरी उम्र बड़ी छोटी है, सवाल बड़ा वड्डा है, इस करके इस सवाल का तू की उत्तर देगा? उन्हें आख्या, महाराज पिताजी मेरी उम्र जरूर छोटी है, पर तेरे जिहड़ी विद्या प्राप्त की तेरी विद्या बहुत वड्डी है। इस करके मैं छोटी उम्र में ही वड्डे सवाल कढ के दिखा देंगा। मेरे पिताजी मैंने दसो लोग कौन ने? गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या, बच्चो इन्हां दा धर्म डुब रहा है। ते कहण लगा, महाराज इन्हां दा धर्म बच किवें सकदा है? हजूर ने आख्या, बच्चो तू छोटी उम्र च वड्डे सवाल कढेगा? कहण लगा, हाँ पिताजी तुहाडी कृपा होई ते कढांगा। जे वड्डे सवाल कढे ना ते तुहाडी विद्या नूं लाज लग जाए। एक गल दा ध्यान रखियो, कदी बेटा पिता नूं आग्या नहीं कर सकदा, ना सिख आग्या करदा पिता। आपां कई वार कह दिंदे हां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आग्या देती, आग्या नहीं सी दी। बापू पुछदा है इन्हां दा धर्म डुब रहा है, धर्म किवें बच सकदा है? फिर वड्डे सवाल करना ते दस इन्हां दा धर्म किवें बच सकदा है? उन्हें आख्या, बापू अपने सिर दा कोई चप्पू ला दे, ये धर्म दा डुबदा होया बेड़ा बच सकदा। धर्मी पुरुष अपने सिर दा चप्पू ला के इन्हां दा डुबदा बेड़ा बचा सकदा। गुरु तेग बहादुर महाराज का दूसरा सवाल से उन्हें आख्या, बच्चो इहो जिहा कोई धर्मात्मा है तेरी निगाह विच जिहड़ा अपने सिर दा चप्पू ला के इन्हां दा डुबदा बेड़ा बचा सकदा हो? तेरी निगाह च इहो जिहा कोई है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज हाथ जोड़ के कह लगे, बापू तुहाडी रहमत दे नाल मैनू माफ करियो, मैं बचन जो करन लगा हां ये तुहाडी कृपा नाल करन लगा। दुनिया विच तुहाडे वर्गा धर्मात्मा कोई नहीं। अगर तुसीं अपने सिर दा चप्पू ला दिओ, डुबदा होया धर्म बच सकदा। तुहाडे सिर दा चप्पू लग जाए ते डुबदा होया धर्म इन्हां दा बच सकदा। यह वचन कीता सी गोबिंद राय महाराज ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु तेग बहादुर महाराज खुश हो गए। कहंदे ने घुट के अपने बच्चों नूं छाती नाल ला के कहण लगा, बेटा मैं इहो आस तेरे तो रखदा सा। मेरे दादे ने कहता पंडितां नूं जा चले जाओ, औरंगजेब बादशाह नूं कह दिओ अगर गुरु नानक महाराज की गद्दी नूं वो मुसलमान बना ले, असीं सारे अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। ये पंडित चले गए ने एक चिट्ठी लिखी शेर अफगान नूं कि गुरु तेग बहादुर महाराज नूं तुसीं मुसलमान बना लो, असीं अपने आप सारे मुसलमान बन जाएंगे। ये चिट्ठी औरंगजेब बादशाह को जांदी है। गुरु तेग बहादुर महाराज
इधरों आप तैयारी करते ने हजूर ने एक पंडाल सजाया, पंडाल सजा के मेरे दाते ने इसी तरह गोबिंद राय नो गुरगद्दी ते बिठा के सारियां जिम्मेदारियां सौंप दित्तियां। पंजा सिंहां नूं नाल लिया मेरे दाते गुरु तेग बहादुर महाराज ने। पंज सिख नाल लेके गुरु तेग बहादुर महाराज जदों तुर लगे ने उस समय माता गुजर कौर जी सामने आके खड़े हो जाते। धर्म पत्नी सी माता जी सामने आके गल च पला पा लिया, कहन पति देव मैनू की उपदेश है, मैनू की उपदेश देंदे जाओ। जदों मेरी मां सामने खड़ी सी गुरु तेग बहादुर महाराज कहणगे गुजर कौर अपना शरीर नहीं त्यागना तो अकाल पुरख दे हुक्म च रहना, आत्म घाती है जगत कसाई। इस करके जो सतगुरु भाणा वरताएगा उस भाणे च रहना है। उस मां ने आख्या सी पति देव मैं सारे नजारे तक्के ने आनंदपुर साहिब दे, पर एक नजारा रह जाना है। पति देव तुहाडी शहादत मैं किवें तकांगी अखां दे नाल, मैं चाहुंदी हां तुहाडी शहादत भी अपनी अखां नाल तक। मेरे दाते ने एक सवाल का जवाब दिता है, कहण लगे गुजर कौर शहादत ते तू नहीं तक सकती, मेरा तेरा बचन लिया और समा नहीं मैं कोई बचन ज्यादा कर सका। जाती वार तू बचन कर देता है, जब मेरा तेरा वादा रहा मेरा शीश तेरी चूड़ी जाएगा। गुजर कौर आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु तेग बहादुर महाराज बचन करके अपनी धर्म सपत्नी ने चले ने। माता नानकी जी को आशीर्वाद ले आए, पंजा सिखा नाल ले आए, नाल लैके आगरे की धरती च दाखिल हो गए। गुरु तेग बहादुर महाराज अनोखे ढंग दे नाल गुरु तेग बहादुर महाराज आज जिवें आगरे की धरती चो गिरफ्तार होंदे ने। सज्जनों याद रखियो आगरे की धरती चो गुरु तेग बहादुर महाराज जिवें गिरफ्तार होकर दिल्ली वाल को चलते ने, उन्हां सतरां नूं ताड़ी यथा आप संगत दी सेवा च रुबाई शब्द च हे इउं
ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਅੰਗੂਠੀ ਨੇ आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बहुत बहुत सन्मान आया है लंबड़ साहब वालों, लंबड़दार जी सरदार अवतार सिंह जी बहुत सम्मान करके गए ने, 100 रुपए के निर्माण करके गए। बाबा जी धर्म सिंह के नाल भी था उन्होंने प्यार है, संबंध ने। दाता जी सरदार अवतार सिंह लंबड़दार साहब को चढ़दी कला सिर ते हथ रखे नाम बनदी दात बख्शा। बहुत ही सत्कारयोग ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਕਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰੰਗ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ, इन्हों परिवारों का अथाह प्यार है, दासदा बड़ी कृपा है भाजी फौजा सिंह ते भी सत्कार सहित नाल वो गुरु की बाणी नाल भी जुड़े ने ते मान सन्मान उन्होंने वालों फिर 100 रुपए नाल आया। दाता चढ़दी कला सिर ते हथ रखे मेरे छोटे वीर बच्चों वर्गे ज्ञानी सुखविंदर सिंह ते सुखविंदर सिंह ते जसवंत सिंह, उन्होंने वालों भी 100 रुपए नाल मान सन्मान अरदासां होईयां ने। दाता जी इन्हां दे सिर ते चढ़दी कला बख्शे, मेहर भरिया सिर ते हथ रखे। देखो ये इतिहास का सत्कार है, आ जिहड़ी माया तुसीं दे रहे हो ना, ये इतिहास का सत्कार है, ना कि मेरा। इतिहास नूं तुसीं मत्था टेक रहे हो, गुरु तेग बहादुर महाराज का इतिहास है। देखो सिख कदी कुछ रखता नहीं, वो इत्थे हुंदा जदों मत्था टेकदा है, वो दर्शनी भेटा रख के मत्था टेकदा, महाराज तेरी दर्शनी भेटा मैं इन्नी को रख सकना ते नमस्कार करदा। जिहड़ा आ सामने आके मत्था टेकदे हो ना, ये गुरु महाराज दे दर्शन करन दी भेटा है। आ जिहड़ी माया दासां नूं दे रहे हो ना इत्थे, ये इतिहास भेट माया तुसीं दे रहे हो। सर इतिहास नूं मत्था टेक रहे हो, कोई गाउण वाला लगा होए ते बंदे उत्तों दी माया सुण दिंदे ने ते गुरु के इतिहास नाल अपना किन्ना को प्यार है, इस सबूत दे रहे हो तुसीं अज सारे। सारे वालों वीर जी अमरजीत सिंह वो भी मान सम्मान करके गए ने। इन्हां बच्चों के अंदर बड़ा वड्डा प्यार है, बड़ी वड्डी शरधा है। दाता चढ़दी कला इन्हां नूं बख्शे। आओ मैनू हुक्म लगा भी एक छंद बाद च बहादुर बाबा बिधी चंद दा भी कहना है। हुण मैं भाई दयाला जी जिन्हां नूं देग चों बालिया गया सी, ये कह के गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी का एक छंद केवल कह के ते बाबा जी धर्म सिंह हुक्म ला के गए कि कोरड़ा छंद जदों बहादुर बाबा बिधी चंद भेष बदलता है, पठान पुछते ने भी भेष ते तेरा लगता है पठाना वाला ते बोली तेरी पंजाबियां वाली लगती है, हेरा फेरी लगती कोई, ये आखिर च कह देना है कोरड़ा छंद। आओ छेती छेती 2 छंद कह के टाइम तकरीबन 10 मिनट रह गया जिहड़ा तुहाडे नाल वादा कीता सी। गुरु तेग बहादुर महाराज नूं गिरफ्तार फौजदार सदरदीन करदा आके आगरे विच 1200 घोड़सवार लैके आया से। ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਨਸਾਨ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
इतिहास कहता है ये सोचते सन कि गुरु तेग बहादुर महाराज को इस हवेली च रखा जाएगा, उन्होंने भूतां वाली हवेली ते प्रेतां वाली हवेली कहते सन, महाराज डर जाएंगे। पर यह नहीं सी पता गुरु तेग बहादुर महाराज ने पढ़ते ने पहे काहू को देत नह पहे मानते आन। वो गुरु तेग बहादुर महाराज ते ना किसी का पहे मंगते ना किसी को पहे देते ने, उन्होंने कौन डरा सकता है। इतिहास कहता उस हवेली च रखिया। आखिरकार औरंगजेब बादशाह अपने महला च गुरु तेग बहादुर महाराज को सददा है, मुर्शद वाली चौकी ते बिठा के कोई सवाल करता है, बादशाह तुसी ना जंजू पहनते हो ना मथे ते टिक्का लाउंदे हो, दाता तुसी हिंदुआं दी बात किवें फड़ लई? महाराज तुसी कदी जंजू पहने हो ना तुसी बुत पूजा करते हो, बुत परस्ती तुसी, ये लोग बुतां दी पूजा करते ने, ये जंजू पहनते ने, ये टिक्का लाउंदे ने, तो तुसी इन्हां दे पक्ष च किवें खड़े हो गए? मेरा दाता कहन लगा साडे धर्म दा एक असूल है, साडे घर दा एक असूल है कि तगड़ा माड़े ते धक्का करे, माड़ा आके जदों साडे घर विच करलाउंदा ते असीं दी बाह फड़ लईए। तेग बहादुर बोलिया धर पिया धर्म ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर महाराज दीन दयाल सतगुरु ने आख्या मैं धरती ते पै सकना, मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है पर मैं धर्म नहीं बदल सकता। उन्हें आख्या जा इन्हां दा साथ छड़ दो, जा धर्म तब्दील कर लो, जा करामात विखाओ, जा शहीद होने वास्ते तैयार हो जाओ। तीन को सवाल कहे सन, जा महाराज तुसी शहीद होने वास्ते तैयार हो जाओ। आखिरी शर्त महाराज ने मनी सी। उन्हें आख्या पहली शर्त सी तुसी धर्म बदल लो। महाराज धर्म बदलोगे तुहानू कोई बड़ा हाकम बना दिता जाएगा, मैं अपना मुर्शद मनांगा। औरंगजेब बादशाह कहने लगा मैं तुहाडे चरनां च अपना सिर रखांगा महाराज, नहीं तो मेरी तलवार की भेटा हो जाओगे। गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या मैं जेड़े धर्म च जन्म लिया है मैनू वो धर्म प्यारा है, तू जेड़े धर्म च जन्म लिया तेनू वो धर्म प्यारा है। आओ गुरु तेग बहादुर महाराज ने उस हवेली च फिर उस पिंजरे च पा दिता गया। खड़े नहीं सन हो सकते, इधर उधर हिल नहीं सन सकते। वो जड़ियां सीखां सन पिंजरे दियां उन्होंने जहर लाया गया सी। महाराज का जामा लहू दे नाल लथपथ सी। सिख अपने बच्चे कुर्बान करा सकता, सिख अपनी शहीदी दे सकता, सिख सारा कुछ धर्म वास्ते करने तैयार है, पर सिख के सामने जे किते गुरु कष्टां च होए, गुरु नूं कोई कष्ट दिंदा होए, गुरु नूं कोई माड़ा शब्द बोले, सिख सहार नहीं सकता। भाई मती दास देखते सन, कहने लगे महाराज इहो जे धर्म दियां जड़ां पुट देणियां चाहीदियां ने, इहो जे धर्म नूं फना कर देना चाहिदा है जेड़ा धर्म इहो जिहा पाप करदा है। ये गल काजी ने सुनी, काजी ने औरंगजेब बादशाह नूं जाके दसी। मती दास नूं सदिया गया भरी हुई कचहरी च, कहण लगा मती दासा तू कहना मैं लाहौर ते दिल्ली दियां इट्टां वजा सकना वा, मैं इस धर्म का तख्ता पुठा कर सकना वा, कोई करामात दिखा। कहने लगा दिखा सकता सा, हुक्म की डोर च वजा मैं नहीं दिखा सकता होना। कहने लगा नहीं तो तेनों शहीद होना पएगा। उन्हें आख्या तैयार है। कहते ने लकड़ के तख्तियां च जकड़ के ओदा शरीर दो फाड़ किया गया। आखिरी ख्वाहिश पूछी काजी ने, कोई आखिरी ख्वाहिश? उन्हें आख्या एक आखिरी ख्वाहिश है, जे पूरी कर दे हो मेरा मुख जेड़ा है वो गुरु तेग बहादुर महाराज के पिंजरे वाल होना चाहिए। सामने गुरु तेग बहादुर महाराज हो कहते ने लकड़ा च जकड़िया होया सिख आरा चलता है, हौली हौली करके आरा चलता सी, नाल वो लकड़ के तख्ते सन। ये जिसम नूं हौली हौली चीरिया जाए, हौली हौली चीरांगा दुख ज्यादा होवेगा। दो फाड़ हो गया। बाणी का शब्द सी जिन्हें नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती शुद्धि नाल जपजी साहब की रमता भोग पाता। दो फाड़ा चो आवाज आई, भाई दयाला सिंह जी वो सामने देख रहे सन। गल कहंदा है, वो कहंदा है रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, अगर आंख से न टपके खून वो खून क्या हुआ? वो कहने लगे पशुओं दी रगां च भी खून चलता है, पंछियों दी रगां च भी खून चलता है, पर मैं उस खून को खून बनना जेड़ी मर्द दी अख चो खून दा तुमका धरती दा डिगे वो खून किहो जिहा होया। भाई दयाले दी अखां चो खून आ गया सी जिधर भाई मती दास नूं शहीद कीता गया। उन्हें आख्या औरंगजेब बादशाह
ਇਹ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰਾ ਫੇਰ ਲਿਆ। याद रखी तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये आरा तेरिया राज ਦੀਆਂ जड़ां 'ਚ फिर गया है, तेरा तख्त डोलदा डोलदा एक दिन फना हो जाएगा। सदया गया भाई दयाले ਨੂੰ ਵੀ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਲਾਦ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਦਇਆਲਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਇਸ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਗੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ। भाई दयाल दास मथा टेकदा है, ते काजी कहंदा दयाल दास घबरा गए? कहन लगा नहीं घबराया ते नहीं। कहन लगा फिर मथा क्यों टेकना है? कहंदा मथा इस करके टेकना कि शब्द किसी दिन गुरु पंजवें पातशाह ने सानू पढ़ाया सी, अज वो शब्द सुनाउण लगा। बच्चा स्कूले पढ़ने वास्ते जाता है, ओदा टीचर सुनता भी संथ्या पका के भी आया कि नहीं आया। अज वो परचा देन लगा, जेड़ा परचा महाराज गुरु पंजवें पातशाह ने सानू तत्ती तवी ते बैठ के पा के दसिया सी, पूरने पाए सन, ते अज उन्हां नूं मैं पका सकिया कि नहीं पका सकिया। मैं मत्था टेकिया, हे शहीदां दे सरताज, एक दिन तेनू समा मिलिया सी उबल दी देग च बैठण दा, अज मैनूं समा मिलिया। मैं भागां वाला वां, मैं पंजवें पातशाह दे चरनां च नमस्कार कीती है। करके नमस्कार भाई दयाल दास उबल दी देग चौंकड़ा मार के हे क्यों
बैठा ओ शांत मई मुखो सतनाम आप काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पैर काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पैर देह विहीन सदेह सपोतन के मर्द मूल ना डरते हर की परवाने अनु मगरो लोग सलामा करते सच विच पहुंच गया सचखंड विच पहुंच गया नूर जी पी के प्रेम प्याला करता गुर मंत्र नू सिद्धि सूरा भाई दयाला करता गुर मंत्र नू सिद्धि सूरा भाई दयाला सिद्धि सूरा भाई दयाला सिद्धि सूरा भाई दयाला क्षमा जलती है जलाने के लिए लाखों परवाने जल गए ये भेद पाने के लिए क्षमा पता नहीं अपने आप को साड़न वास्ते जलदी है जब परवाने को साड़न वास्ते जलदी है आज परवाने आ रहे ने क्षमा की लाख के सड़न वास्ते भाई दयाला जी शहादत का जाम पी गए भाई मती दास को रूह च लपेट के शहीद कर दिता गया इतिहास कहता 54 साल 7 महीने 10 दिन की उम्र से गुरु तेग बहादुर महाराज दे अज पिंजरे चो बाहर कर लिया गया सोचते होने ने कि गुरु तेग बहादुर महाराज घबराए गए होंगे हुण ये इन मान लैणगे पर पता नहीं से गुरु तेग बहादुर महाराज वो गुरु है जिन्हां ने भोरे च बह के तप कीता ते एक दिन खड़े होए ते सिर लग गया जाके भोरे नो मां ने आख्या बेटा आप भोरा उच्चा कर दिए खड़ा नहीं होया जाता कहन के मां मैं इदू भी छोटे भोरे च जाके रहा इदू ही छोटे भोरे च जाके मैं तपस्या करनी इस भोरे को वड्डा ना कीता जाए आज गुरु तेग बहादुर महाराज बाहर लेके जदों आए ते गुरुदेव ने इशनान किया चिट्टे वस्त्र पाए मेरे दाते गुरु तेग बहादुर दीन दुनिया के मालक ने जलालुद्दीन जल्लाद आ गया कहते ने तलवार फड़ के जो आया ना जलालुद्दीन जल्लाद वो आया तलवार लेके गुरु तेग बहादुर महाराज ते वार करने वास्ते उस तो पहला सैफ अली ने तलवार विखाई सी महाराज खजाने दियां चाबियां दिखाइयां सन महाराज ने आख्या सैफ अली ये तलवार ते ना किदा लिखिया उन्हें आख्या किसी का होगा मैनू कोई पता कह लगा नहीं जड़ियां शाही महलों च तलवारां होंदियां ने किसी ना किसी बादशाह का नाम होंदा उन्हें ना पढ़िया उन्हें आख्या औरंगजेब बादशाह के अब्बा जान का ना है शाहजहां बादशाह उन्हें आख्या रख दे तलवार में पड़े कह लगा क्यों वो कह लगा है तलवार ते 4 बार मेरे पिता गुरु 6वें पातशाह के चरणों च डिग चुकी है 4 बार तेरी कृपान हारी कृपान लेके आ गए वो चंगी कृपान लेके आ ये ते 4 बार अगे मैदाने जंग चो हार चुकी है 4 बार गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के चरणों च तुहाडी तलवार डिगी है तो फिर लेके आ गए हो बेहोश हो गया सैफ अली तलवार जाके टंग दी इतिहास कहता है संक्षेप के बचन करा आखिरी कविता कह लगा बहादुर बाबा बिधि चंद कह जलालुद्दीन जलाद आया गुरुदेव सच्चे पातशाह महाराज ने जपजी साहब का पाठ आरंभ किया मेरे दाते ने एक गल कही सी जिस समय काजी ने आख्या महाराज तुसी हुण आनंदपुर साहब नहीं जा सकते दाते ने आख्या मैं जाना चाह पर मेरा शीश आनंदपुर साहब जरूर जाएगा सामने भाई जैता बैठा सी अखा चखा पाइया महाराज ने भाई जैते ने तकिया जो महाराज की शहीदी होगी मैं शीश लेके जाऊंगा बड़ा लंबेरा इतिहास लोचक इतिहास है बड़ा ये कहते ने भाई जैता ते बाबा गुरदित्ता जी भी नाल सन इन्हां नूं महाराज ने आख्या तुसी मेरी शहीदी सामने अखां दे तकनी है देखना सामने लोग नहीं बैठना चाहते तो अखां बंद भी कर सकते सन पर महाराज ने आख्या नहीं अपनी अखां नाल शहीद होंदे तकियो
ते किते अखां च पानी ना आ जाए। भाई जैता कहन लगा महाराज सानू तरवास दिओ, किते अखां च पानी ना आ जाए, लोकां नूं पता ना लग जाए गुरु के सिख ने साडे सिर ते हथ रखियो। अज भाई जैता सामने बैठा है, जपजी साहब की बाणी पढ़ी, महाराज ने सिर झुकाया अकाल पुरख की दरगाह विच, जलालुद्दीन ने वार किया, वो शीश लैके भाई जैता फिर आनंदपुर साहिब की धरती च जांदा। आनंदपुर साहिब जदों गए ते कहंदे ने कीरतपुर साहिब जदों पहुंचा है, भाई जैता इथों महाराज शीश लैण आए सन। हजूर सच्चे पातशाह पालकी च रख के शीश नूं लैके गए। इतिहास ये भी कहंदा है कि जिस समय भाई जैता शीश लैके गया, शीश उहदे हत्थां च गुरु गोबिंद सिंह महाराज झोली कर देंगे, मेरी झोली च पा दे, की अमानत है? कहणगे तुहाडे घर दी अमानत। कहणगे मेरी झोली च पा दे। एक पासे माता गुजर कौर खड़ी है, वो सोचदी अमानत मैनू दे। भाई जैता कदी उधर तकदा कदी उधर तकदा है, आखिरकार उस मां दे नेड़े आके कहण लगा मां अमानत तेरी है, लिया तेरी झोली च पाउणा मैं, अमानत तेरी है। उस मां दी झोली च शीश पा दिता गया। एक एक कपड़ा करके जो खोलिया गया, रेशम वर्गे शीश गुरु तेग बहादुर महाराज दे अखां चों पानी आ गया। संगत दी गुरमुखो माता गुजर कौर ने अरदास की, दाता जिवें तेरी निभ के मेरी निभ आ जाए, रहमत करियो। चंदन दी चिखा चिण के मेरे दाते दे शीश दा संस्कार किया गया। शीशगंज गुरुद्वारा साहिब दो जगह, शीशगंज गुरुद्वारा साहिब, एक आनंदपुर साहिब ते एक दिल्ली की धरती विच, वही शीशगंज साहिब दो जगह स्थान महाराज दा ते धड़ दा संस्कार होया। रकाबगंज साहिब लखी शाह वंजारे कीता, ये सी शहादत गुरु तेग बहादुर महाराज दे। सैकटरी साहब भाजी बलबीर सिंह 200 रुपया स्पैशल अनाम ढाडी जथे ने भेज रहे ने, बड़े सूझवान ने, गुरु की बड़ी रहमत ते बड़ी कृपा है। स्टेज के बड़े बड़े बुलारे ने, उन्हों का हार्दिक स्नेह का मैं तह दिलों धन्यवाद करदा। दाता नूं चढ़दी कला बख्शे। होर भी संगतां वालों मान सन्मान है, दाता चढ़दी। मेरे छोटे वीर ज्ञानी सुखविंदर सिंह हरदासपुर तो 100 रुपया मैं अरदास भी करा के गए सन। भाजी जोगा सिंह जी मेरे छोटे वीर ने, उन्होंने वालों भी 100 रुपया मैं अरदास। आप सारे ही जथे का नाम बाबा धर्म सिंह दे के जा रहा, 200 रुपया भी सारा जथा बड़ा चंगा लगा, मैनू आनंद आ रहा से। ये गुरु की कृपा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा तो है ही कुछ नहीं, सब दाते की दात है। जो दाता देता परमेश्वर देता है, उस दाते की दात मैं ज्यादा समा, क्योंकि मेरा कहना तुसीं मान लिया, तुसीं उठ के नहीं गए भैणो मेरे वीरो, जिन्हें तुसीं बैठे हो। देखो कई चले भी गए ने उठ उठ के, भाई पता नहीं कितना को समा लगना, पर कितना वड्डा तुसीं हट रखिया है। तुसीं अरदास कीती, दाता सानू तंदुरुस्ती दिओ, असीं तुहाडे दरबार विच बह सकीए। कईयां नूं अखां नहीं मिलियां, विचारे नूं तरसदे ने, कईयां कोल पैर है ने, कईयां तो तुरिया नहीं जाता। तुहानूं सारी तौफीक मेरे दाते ने दिती है। दाता तुहानूं चढ़दी कला बख्शे। आखिरी कविता जो हुक्म लगा चलो भी पूरा करना चाहिए। अज बहादुर बाबा विधि चंद विधियां दा जाणू सूरमा जदों जांदा है, दुशाले लैण वास्ते जिहड़े हत्थ खोल के ले जांदे ने ते जाके हुक्का दिंदा है। इस दुशाले वर्गा दुशाला चाहिए है। लुटे हुए दुशाले लैके जिस समय मिर्जा बेग आ जाता है, उस समय कहता भी तेरा ना की है, उन्हें ना अपना दसिया तो कह लगा मैनूं लगदा भी तू पंजाब दे रहने वाला है। कह लगा नहीं मैं पंजाब दे रहने वाला नहीं, अफगानिस्तान दे रहने वाला हाँ मैं। कह लगा तेरी बोली च फर्क लगता है, सवाल जवाब हो रहे ने। वो कह लगा काबल दा भेख दे विच मैनूं जापदा कोई पंजाबी आ गया, लुट के लेके चला सानू। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की कृपा नाल हाजिर जवाब देके बहादुर बाबा विधि चंद उन्हां तो पल्ला जिवें छडांदे ने ते दुशाले लेके चले जांदे ने। कोड़े शब्द च मेरे साथी हे इहो ज्ञान
दुशाले बड़े सुठी तार दे सच जानी असी नहीं गपौड़ मार दे सच जानी असी नहीं गपौड़ मार दे खेड़ा की खेड़ा बड़ा खिडारिया खेड़ा की खेड़ा बड़ा खिडारिया तेरा तेरा देश दस देव भारिया तेरा तेरा देश दस देव भारिया तेरा तेरा देश दस देव भारिया आप जी श्रवण कर रहे सो पट्टी शहर की कहानी जिथे बहादुर बाबा बिधि चंद दुशाले लैण वास्ते गया सी। समा काफी हो चुका, मैं इत्थे समाप्ति कर देना।